Hello, my dearest friends. Welcome to all of you in VR Mathematics Academy again. And this is Dr. Vivek Rohra, your mathematics mentor. In the previous lecture, मैंने आपको explain किया था about the first discrete probability distribution from the unit second, that is the binomial distribution. After binomial distribution, discrete probability distribution में दूसरा important distribution हम आज study करेंगे, that is called the Poisson distribution. What is the Poisson distribution? Poisson distribution भी एक discrete probability distribution है, but this is very important क्योंकि कुछ events, कुछ probabilities ऐसी होती हैं जिनके events बहुत ही rare होते हैं और उनकी जो occurrence होती है वो बहुत ही large number में होती है. तो large number of occurrence होती है ऐसे events की और ऐसे events बहुत ही rare होते हैं. That is example that at a telephone booth the number of telephone calls per minute a telecaller receive. इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं पर मिनट और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं इन अ मिनट. एग्जाम्पल दैट 200 और 300. ओके, सो इसका बहुत ही रेयर, ये बहुत ही रेयर इवेंट होता है. दैट्स वाई इसको हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल्स में लेकर आते हैं. नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज. एग्जाम्पल दैट इस बार कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस के थ्रू इतनी सारी डेथ हुई इन पर, और यदि हम उसको कैलकुलेट करें पर आवर और पर मिनट तब भी वो एक लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट हो जाता है. ऐसे केसेस भी हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के एज एन एग्जाम्पल, एज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम इसको यूज कर सकते हैं. एंड द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिशन इन अ रेडियो एक्टिव सोर्स. Okay, so these all are the examples of the Poisson distribution. That is where we can use the Poisson distribution. तो ये तो हुआ एक Poisson distribution का बहुत बेसिक सा सिस्टम. तो Poisson distribution क्या है? Poisson distribution ऐसे प्लेसेस पे लग रहा है जहां पर एक तो इवेंट्स रेयर है, बहुत रेयर इवेंट्स है, एंड इवेंट्स का क्या है, लार्ज नंबर ऑफ अकरेंस, लार्ज नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट, लार्ज नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट. ऐसे प्लेसेस पे बेसिकली हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं. एग्जाम्पल्स मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किए. दैट इज एग्जाम्पल नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स, नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स पर मिनट. फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड इज number of death due to coronavirus per hour, or we can say per minute. Okay, so these are some examples of the Poisson distribution. Now we come to the definition of Poisson distribution. So what is the Poisson distribution? If x is a discrete random variable, if x is a DRV, if x is a discrete random variable, then Px is equal to R is PMF of Poisson distribution if, तो Px is equal to R Poisson distribution का probability mass function होगा if Px is equal to R will be equal to e raised to the power minus lambda, lambda raised to the power R upon factorial R, where lambda is, lambda क्या है, lambda is greater than 0, called lambda greater than 0 called Poisson parameter. This is called Poisson parameter, which is denoted as x similar to p lambda. This is called Poisson parameter, and lambda greater than 0 and r is equal to 0, 1, 2 up to so on. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था, r की वैल्यू हम अप टू n तक लेते थे बिकॉज वहाँ n नंबर ऑफ ट्रायल्स होते थे. बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ अकरेंस है, दैट्स व्हाई वी गोज टू द इंफिनिटी. ओके, so this is basically the definition of Poisson distribution, and this is very important. जहाँ पर भी Poisson distribution का यूज करेंगे या जहाँ पर भी Poisson distribution हमें गिवन होगा वहाँ पर हम probability mass function ये यूज करेंगे, right? So this is the definition. Now
द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरटीयू में पूछा जाता है इस पे बेस्ड, दैट इज प्रूव दैट Poisson distribution is a limiting case of binomial distribution. हमें ये प्रूव करना है कि जो Poisson distribution है वो binomial distribution का क्या है, limiting case है. So let's see how we will prove that is Poisson distribution is a limiting case of binomial distribution. देखिए आप इसको कैसे प्रूव करेंगे. जब हमें इसका लिमिटिंग केस प्रूव करना है तो लिमिटिंग केस प्रूव करने में सबसे पहले हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन अप्लाई कर देते हैं. कौन कौन सी कंडीशन, देखिए लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स है, दैट्स व्हाई n टेंड्स टू इंफिनिटी. और लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत ही कम होती है, दैट इज हम यहाँ पर p टेंड्स टू 0 लेके चलते हैं. ओके, एंड द थर्ड थिंग इज जो लैम्डा होता है ये पैरामीटर है, एंड लैम्डा किसके इक्वल होता है, lambda is equal to n into p, that is the mean of the binomial distribution. हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है mean of the binomial distribution कितना होता है np, और यहाँ पर ये किसके इक्वल होता है, lambda के इक्वल. सो दीज आर द लिमिटिंग कंडीशन. ये लिमिटिंग कंडीशन हम किस पे अप्लाई करेंगे, binomial distribution के pmf पे, और प्रूव करेंगे Poisson distribution का pmf. लेट्स सी कैसे प्रूव करेंगे. binomial distribution का pmf क्या होता है, px is equal to r ncr p raised to the power r q raised to the power n minus r, where r is equal to from 0 to n. इसको मैं लिख दूंगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r. डेफिनेशन अप्लाई कर दी हमने ncr की, p पावर r एज इट इज, q पावर n माइनस r एज इट इज. नाउ वी ओपन द फैक्टोरियल n. देखो फैक्टोरियल n को ओपन करेंगे, देखो कैसे ओपन करेंगे, जैसे फैक्टोरियल 4 को ओपन कर रहा हूँ. फैक्टोरियल 4 को मैंने ओपन किया 4 3, एग्जाम्पल दैट मुझे 3 फैक्टोरियल तक रिक्वायरमेंट है तो मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया, स्टॉप कर दिया यहाँ पर. ऐसे ही मुझे लिखना है 6 फैक्टोरियल, बट मुझे इसको स्टॉप करना है 6 5 4 पे स्टॉप करना है, तो मैंने 4 पे फैक्टोरियल अप्लाई कर दिया. तो सेम टेक्निक मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ. देखिए कैसे अप्लाई कर रहा हूँ. जो न्यूमरेटर में फैक्टोरियल n है, जब इस फैक्टोरियल n को हम ओपन करेंगे तो देखो कैसे ओपन कर रहे हैं. फैक्टोरियल n को ओपन करेंगे n minus 1 n minus 2 up to n minus r minus 1. n minus r minus 1 पे बार अप्लाई करने का मतलब है r minus 1 ब्रैकेट में है, दैट इज r minus 1 इन दी ब्रैकेट. ओके, और मैंने इसको स्टॉप कर दिया n minus r फैक्टोरियल पे. क्यों स्टॉप किया, बिकॉज डिनोमिनेटर में भी n minus r आ रहा है, दैट्स वाई फैक्टोरियल r n minus r फैक्टोरियल. और यहाँ पर आगे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई विद p रेज टू दी पावर r q रेज टू दी पावर n माइनस r. तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है p रेज टू दी पावर r q रेज टू दी पावर n माइनस r. नाउ व्हाट वी विल डू, n माइनस r फैक्टोरियल से n माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल आउट. ओके, और ये कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पर हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस r माइनस 1 बार p रेज टू दी पावर r अपॉन फैक्टोरियल r q रेज टू दी पावर n माइनस r. ओके, नाउ आफ्टर दैट p रेज टू दी पावर r, p रेज टू दी पावर r है तो p को लिख देंगे सबके साथ. यहाँ पर आ जाएगा ये, देखिए कैसे लिखेंगे इसको, np. ओके, और इधर आ जाएगा यहाँ पर ये np माइनस p, देन np माइनस 2p अप टू np माइनस r माइनस 1 इंटू p होल अपॉन फैक्टोरियल r, एंड q को क्या लिख देंगे, 1 माइनस p रेज टू दी पावर n माइनस r. कुछ इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. ओके, नाउ लिमिटिंग कंडीशन अप्लाई करते हैं, दैट इज हम एक तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी p टेंस टू 0 अप्लाई करते हैं, और लैम्डा किसके प्लेस पे रख देंगे, np के प्लेस पे. इम्प्लाइज दैट जब हम ये सब अप्लाई करेंगे तो np के प्लेस पे लैम्डा रख रहे हैं, तो लैम्डा
एन पी माइनस पी दैट इज लैम्डा माइनस जीरो। एन पी माइनस पी कितना हो जाएगा, लैम्डा माइनस जीरो, बिकॉज पी की वैल्यू तो जीरो है और एन पी की वैल्यू लैम्डा है। ऐसे यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा माइनस जीरो और ये कहाँ तक आ जाएगा, आर टाइम्स, दिस इज कम्स आर टाइम्स होल अपॉन फैक्टोरियल आर, और यहाँ पर हम वन माइनस पी पावर एन माइनस आर है, इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई करनी है। सो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी पी टेंस टू जीरो, वन माइनस पी को हम क्या लिखेंगे, देखो लैम्डा किसके इक्वल है, लैम्डा इज इक्वल टू एन पी। देखिए यहाँ पर मैं अलग से बता रहा हूँ, लैम्डा किसके इक्वल है, एन पी के इक्वल। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा अपॉन एन, लैम्डा अपॉन एन रेज टू दी पावर एन, और ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में लिमिट अप्लाई कर देंगे, एन टेंस टू इंफिनिटी पी टेंस टू जीरो, किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, वन माइनस पी रेज टू दी पावर आर। यहाँ पर वन माइनस पी रेज टू दी पावर एन माइनस आर में वन माइनस पी रेज टू दी पावर एन तो एज इट इज न्यूमरेटर में है, और माइनस आर तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में मुझे पी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पी टेंस टू जीरो अप्लाई करते ही वन पावर आर किसके इक्वल हो जाएगा, वन के इक्वल। बट वहां चेंज करने की मुझे रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पावर भी एन के ऊपर आ रही है और एन और पी दोनों के ऊपर लिमिटिंग केस है, दैट्स वाई। अब देखें आप इसके बाद, यहाँ तो लैम्डा पावर आर आ गया, लैम्डा आर टाइम्स आ रहा है, फैक्टोरियल आर आ रहा है, दिस इज इक्वल टू वन डिनोमिनेटर, और यहाँ पर हम लिमिटिंग केस अप्लाई करेंगे तो ई पावर माइनस लैम्डा आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी वन प्लस लैम्डा रेज टू दी पावर एन, लैम्डा अपॉन एन रेज टू दी पावर एन इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर लैम्डा। एक स्टैंडर्ड लिमिट है, ऑलरेडी प्रूव्ड है ये, ओके। इसको प्रूव करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं अलग से। सो पी x is equal to r will be equal to lambda power r upon factorial r e raised to the power minus lambda. This is the probability mass function of Poisson distribution. तो Poisson distribution का PMF आ गया by the help of the limiting case of binomial distribution. तो ये एक मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, so this is very important. Now the next point is that is how we will find the mean and variance for Poisson distribution. So the next important part is the mean and variance of Poisson distribution. The number one, mean of Poisson distribution. Mean क्या होता है, expectation of x, और we can say x bar. Discrete है तो discrete में mean कैसे find out करेंगे, discrete में mean find out करेंगे summation of x into px. बट यहाँ पर r के फॉर्म में है तो मैं समीशन r इंटू पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा रेज टू दी पावर r फैक्टोरियल r ई रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा, कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ओके। और यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है r इज इक्वल टू फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ई रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा भाग समीशन r इज इक्वल टू जीरो अप टू इंफिनिटी r लैम्डा रेज टू दी पावर आर फैक्टोरियल आर को लिख सकता हूँ आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। सो दैट्स वाई आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ओके। एंड वी कैन राइट डाउन ई पावर माइनस लैम्डा समीशन आर माइनस वन फैक्टोरियल आ गया, दैट इज आर इज स्टार्ट फ्रॉम वन टू इंफिनिटी, एंड लैम्डा पावर आर को लिख सकता हूँ लैम्डा पावर आर माइनस वन फैक्टोरियल। ऐसा लिखने का रीजन यही है, इसको एक सीरीज फॉर्म में लिखना है स्टैंडर्ड। लैम्डा आ जाएगा समीशन से बाहर, क्योंकि समीशन अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, आर के ऊपर। सो दिस इज आर इज इक्वल टू वन टू इंफिनिटी लैम्डा पावर आर माइनस वन अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल। इस समीशन को जब हम ओपन करेंगे, आर इज इक्वल टू वन पुटअप करोगे, आर इज इक्वल टू वन पुटअप करते ही वन आ जाएगा, आर इज इक्वल टू टू पुटअप करते ही लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल वन, फिर आर इज इक्वल टू थ्री पुटअप करते ही लैम्डा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू अप टू सो ऑन। तो ये बेसिकली किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ई पावर लैम्डा के एक्सपेंशन को शो कर रहा है, ओके। तो दिस इज समीशन इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर लैम्डा। नाउ वी पुट दिस वैल्यू, इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट अप कर देंगे एंड वी गॉट द मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और हमें इस तरह से बहुत इजीली हम मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के। सो लेट्स सी, ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा, और ये समीशन किसके इक्वल आ गया, समीशन इक्वल आ गया ई पावर लैम्डा के।
So e power lambda and e power minus lambda, they both will cancel out each other. So the mean of Poisson distribution will be equal to lambda. तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन किसके इक्वल होगा? लैम्डा के इक्वल. इन द सिमिलर वे जब आप वेरिएंस फाइंड आउट करोगे, वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस ऑफ एक्स दैट इज सिग्मा स्क्वायर, लिख दो इसको. वेरिएंस ऑफ एक्स लिख दो, दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर. अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मतलब मीन तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बोलो या फिर इसको बोलो एक्सपेक्टेशन ऑफ आर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू समीशन आर स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिख दो, लैम्डा रेज टू दी पावर आर फैक्टोरियल आर एंड ई रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा. आपको एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन समझनी और एक्सपेक्टेशन के बारे में समझना है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं जो कि एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस के ऊपर है. वहां से आप इनके फॉर्मूलेस को बहुत इजीली समझ सकते हैं, राइट, यदि अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं. नाउ आर स्क्वायर, यहाँ पर देखिए समीशन जो आर स्क्वायर का है कैसे ओपन करेंगे. आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज आर इंटू आर माइनस वन प्लस आर. कुछ इस टाइप से इसको ब्रेकअप किया जा सकता है. एंड लैम्डा पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर और ई पावर माइनस लैम्डा को हम समीशन से बाहर ले लेंगे, राइट. कुछ इस टाइप से आ जाएगा आपको. आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा. अभी तक का लेक्चर आपको समझ में आ गया है. आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें. ई पावर माइनस लैम्डा. नाउ वी कैन ब्रेक आर इज इक्वल टू 0 to infinity आर इंटू आर माइनस वन लैम्डा रेज टू दी पावर आर फैक्टोरियल आर. ब्रेक कर देंगे एंड इधर आ जाएगा आपके पास समीशन आर इज इक्वल टू 0 to infinity आर इंटू लैम्डा रेज टू दी पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर. ये तो हमने जस्ट अभी मीन फाइंड आउट किया था तो इसकी वैल्यू तो हमने लैम्डा ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है. इसको कैलकुलेट करना है हमें, राइट. सो दिस विल बी इजीली कैलकुलेट, बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसको. Now let's see how we will calculate it and this is equal to lambda. यहाँ तो आ गया e power minus lambda. Okay, this is e power minus lambda and summation r is equal to 0 to infinity r minus 1 lambda raised to the power r. फैक्टोरियल r को ओपन कर देंगे r minus 1 r minus 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये लैम्डा इंटू ई रेज टू दी पावर लैम्डा. कुछ इस टाइप से आ जाएगा ये समीशन. ओके, तो ये समीशन तो हमने लिख दिया यहाँ पर ये आर माइनस वन से आर माइनस वन कैंसिल आउट और लैम्डा पावर आर को अपन लिख देंगे ई पावर माइनस लैम्डा. समीशन स्टार्ट हो जाएगा 2 से अप टू इन्फिनिटी. लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि मैं इसको लिख रहा हूँ लैम्डा पावर आर माइनस टू बिकॉज डिनोमिनेटर में आर माइनस टू फैक्टोरियल है इसलिए, प्लस लैम्डा ई रेज टू दी पावर लैम्डा. एंड दिस समीशन अगेन इफ यू विल ओपन फ्रॉम आर इज इक्वल टू 2 ये वापस ई पावर लैम्डा में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस अगेन कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ ई पावर लैम्डा और ई पावर लैम्डा से ई पावर लैम्डा कैंसिल, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा. ये तो किसकी वैल्यू आ गई? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर की. हमें वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है या सिग्मा स्क्वायर फाइंड आउट करना है. देन दिस विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ होल स्क्वायर. तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल आ गया? लैम्डा के इक्वल. तो वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो या एक्सपेक्टेशन ऑफ या मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, दे बोथ आर इक्वल टू पैरामीटर लैम्डा. So this is, my dear student, here we understand about the next discrete distribution, that is the Poisson distribution, which is very important, जो कि large number of occurrence of events के ऊपर apply किया जाता है. यहाँ पर number of occurrence इतनी large होती है कि n tends to infinity लेके चलते हैं और जो probability of success होती है which is very small, which we assume tends to 0. So in this lecture I think you understand very clearly the Poisson distribution. So like and subscribe जरूर करें चैनल को and also share this video with your friends.
Okay, so they also get some knowledge about the Poisson distribution. Okay, thanks to all of you, my dear students.